Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discussing about mathematics chapter 13, statistics out of 14. Out of 14, today we are discussing about 13. Am I right? So the 13th chapter, statistics chapter, जो हमारी इसकी previous class थी, it's an introduction class. In the introduction class, we also discuss mean. And how many types of mean to be calculated. We also discuss about in our previous class. In our today class, we are discuss about mode. आज की क्लास में क्या करेंगे, मोड को डिस्कस करेंगे. और आई होप दिस इज आवर सुपर 100. आप सभी को पता होगा इसमें रैपिड रिवीजन चलेगी सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टरों की अप टू 25 जन तक. राइट? तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मोड. फर्स्टली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने मीन में क्या क्या पढ़ा था. मीन, मीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by statistic? The meaning of statistic is average, to be an average. What do you mean by average? For example, let's suppose an example. जैसे मैं एक example दूँ कि कल क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दिया था. चलो बेसिकली मैं आपका एक क्लास टेस्ट की बात करूँ. एक क्लास टेस्ट होती है, किसी एक इंटेलिजेंट बच्चे की बात करें. वो अपना मैथ्स का टेस्ट दे रहा है. ठीक है, मैथ्स का इसका यूटी है 30 मार्क्स का. अब बेसिकली उसको पता होगा ना कि वो बेसिकली आराम से कितने नंबर ले आएगा. वो इंटेलिजेंट होगा तो 25 प्लस तो इजीली उसको पता होगा ना. तो दिस इज एन एवरेज कि वो क्या कहते हैं 30 में से कितने नंबर इजीली ला सकता है. तो ये एवरेज होता है ना कि कितना अंदाजा लगा के कि मैं कितने नंबर ला सकता हूँ. तो दिस इज ऑल्सो एन एवरेज. इसको हमें एवरेज कहते हैं. और फिर मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट इज ग्रुप डेटा एंड सेकेंड अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा or ungroup data. Group data is also a two types. First is exclusive or inclusive. Exclusive and inclusive. Inclusive is not present in your current syllabus, but exclusive is present in your current syllabus. Exclusive type of data is continuous type of data. Continuous type of data means in the class intervals are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. These are the continuous type of data because the last term of the first interval is last. The last term मतलब upper limit of the previous class interval is to be equal to the lower limit of the next class interval is equals to. For example, जैसे ये लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की है और ये लोअर लिमिट सेकेंड क्लास इंटरवल की इक्वल होती है. डेट्स इज एन कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डेटा और एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा. और अगर आपका टाइप ऑफ डेटा 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, this is not an continuous type of data because the last class interval is end with 10 but the new class interval is start from 11. So this is not an continuous type of data because this is an 10 and this is an 11. So this has difference between 1 and this is also a difference between 1. So this is not an continuous type of data and this is known as a inclusive type of data or ungrouped type of data. This is also, but in class 9th we also discuss about how to be changed, how to be converted this ungroup या discontinuous type of data change into group type of data या discontinuous और continuous. For example, जैसे 0 से 10, 11 से 20, 21 through 30. So these is also a type of ungrouped type of data or inclusive type of data or discontinuous type of data. Many of the things we can see that. तो इस type of data को how to we can convert it into ungroup to group. So let's start. 0.5 minus in lower limit and 0.5 plus in upper limit. This is the formula to convert ungrouped data into group data or discontinuous data into continuous type of data. 0.5 minus in lower limit and 0.5 plus in upper limit. तो इसके अंदर 0.5 जब आप प्लस करोगे तो 10.5 हो जाएगा और इसके अंदर 0.5 माइनस करोगे तो ये भी 10.5 हो जाएगी. तो मतलब दिस इज एन ग्रुप टाइप ऑफ डेटा हो गया ना. 10.5 से एंड या 10.5 से नई इवन नई क्या कहते हैं क्लास इंटरवल स्टार्ट हो गई. यहाँ पे भी 0.5 हो जाएगा और ये 20.5 हो जाएगा. मतलब जो एंड हुई है 20.5 से और नई क्लास इंटरवल भी 20.5 से स्टार्ट हुई. तो दिस इज ऑल्सो एन ग्रुप टाइप ऑफ डेटा. दिस ऑल्सो वी आर डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस क्लासेस. एंड मीन
we calculate mean in all three types. First is direct mean method, second is assume mean method, third is step deviation method. Direct mean method is say that directly क्या कहते हैं, we can calculate. is assume mean method. In assume mean method we also assume the digits in क्लास मार्क्स के अंदर जब हम कोई भी क्या कहते हैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले डिजिट को एज्यूम करते हैं, दिस इज आल्सो एन टाइप ऑफ एज्यूमिंग मेथड. एंड स्टेप डेविएशन मेथड, इट इज एन टाइप ऑफ मेथड इन विच we can calculate the hi, am I right? Yes, hi, let please. For example, in the step deviation method, this is a class interval, this is a frequency, this is an xi. What is xi? Xi is a class mark, and also we are calculated in the xi के अंदर थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाली जब टर्म हमको लेते हैं तो उसको assume mean method कहते हैं. एंड also in assume mean method we can calculate di. Is what? Di is an xi minus a. When we find the di, so also we are discuss about ui is what? How to we calculate ui? When di divided by h. Step deviation method is this type of method in which di divided by h, this is the type to form step deviation method. This is a type to calculate the step deviation method. In the step deviation method we can convert the complex digit, complex multiplication, complex division to convert into the easier step. For example, here your digit is 999, तो here convert हो जाती है ये 90. तो ये कॉम्प्लेक्स को क्या कर देती है, एकदम सिंपलर बना देता है. तो इस टाइप के मीन मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. तो दीज ऑल आर द मीन. एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मोड. आज की क्लास में क्या करेंगे, मोड को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय मोड. मोड से समझते क्या है, मोड कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए मोड को कैलकुलेट करने के लिए. मोड को कैलकुलेट करते हैं हम एल इज व्हाट? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास मार्क. किसी भी क्लास मार्क की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम एल बोलते हैं. एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 into x. This is the formula to calculate the mode. First of all, L means lower limit, F means maximum frequency, F1 means maximum frequency, F0 का मतलब होता है the previous of the maximum frequency. जो previous मतलब पहले वाली क्या होती है, maximum frequency की जो पहले वाली frequency होती है उसको हम बोलते हैं F0. और F2 क्या होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट टर्म होती है. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं की फ्रीक्वेंसी देता हूँ 2, 5, 9, 6. अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर 9, तो 9 इज f1. व्हाट इज द f0? द प्रीवियस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और इसका जो प्रीवियस है 5, तो दिस इज एन f0. एंड व्हाट इज f2 द आफ्टर ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 9, इसका जो आफ्टर उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है f2. ठीक है, आई एम राइट. सो दिस इज एन f1 भी बोल सकते हो, f5 बोल सकते हैं, एंड दिस इज f0 एंड f2. ओके, so this is the formula to calculate mode. And how to be calculate? तो देखो, let's suppose take an example. CI means class interval, FI frequency. Okay, इसके अंदर और किसी की जरूरत नहीं पड़ती. CI 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay, अब इसमें फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट नहीं होगा. और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखो, कभी भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कभी आपकी टॉप और बॉटम पे नहीं होगी, बिकॉज उससे ऊपर वाली FO होती है. और FO फिर कहाँ से या F0 कैसे निकलेगी, बिकॉज अगर ये टॉप और बॉटम पे होगा, इसीलिए ये हमेशा मिड में लाई करती है. इन तीनों के बीच में लाई करेगी और टॉप और बॉटम पे लाई नहीं करेगी कभी भी. आपका हमेशा आपको कैसा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप समझ जाना ये क्वेश्चन ही गलत है. बट ये जैसे मैं मान लो एक फ्रीक्वेंसी है ना 5, 2, 3, 1 और 4. अब इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये दिख रही है, तो आप कह सकते हो क्या ये F5 हो सकती है? नहीं, बिकॉज इसके लिए आप F1 तो ढूंढ लोगे, ये रहा F1. F2 इसके नीचे आना, बट F0 इज वेयर
इसके ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो डेट्स वाई कभी भी आपकी जो F1 होती है मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होगी, वैसे ही बॉटम में भी कभी नहीं होती। जैसे इधर 1 ले लूँ, इधर भी 2 ले लूँ, तो इधर आप क्या कहोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज हेयर, तो ये तो बन गई F1, ये बन गया F0, बट F2 इज वेयर, बिकॉज डेट्स वाई जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है F1 कभी भी क्या कहते हैं टॉप और बॉटम पे नहीं लाई करती है, हमेशा मिड में लाई करती है। ओके, तो जैसे मैं इसमें एक फ्रीक्वेंसी बनाता हूँ 5 2 9 6 3, तो दिस इज योर टेबल, this is the class interval, this is the frequency class interval is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, आप जैसे बात में ऐसे करी जाए थोड़ा सा एग्जांपल लेके कि 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 के बीच में 2 स्टूडेंट, 20 से 30 के बीच में 9 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में 6 स्टूडेंट और 40 से 50 के बीच में 3 स्टूडेंट। अब मैं ऐसा ये पूछता हूँ, ऐसा कौन से वाले मार्क्स हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, किसके बीच में ऐसे वो वाले मार्क्स हैं, ऐसे कौन से मार्क्स हैं, कौन से मार्क्स, कौन सा एक स्पेसिफिक तो मार्क्स होगा नहीं, जैसे 0 से 10 के बीच में ऐसे मार्क्स हैं, वैसे ही ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसके बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हो, ऐसा कौन सा इंटरवल है, ऐसा कौन सा इंटरवल है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, मतलब ऐसा कौन सा इंटरवल है 20 से 30 का इंटरवल, कौन सा इंटरवल 20 से 30 का ऐसा इंटरवल है जिसके बीच में सबसे ज्यादा क्या आ रहे हैं स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये रहे स्टूडेंट। अब मैंने क्या बोला, तो दिस इज एन व्हाट F5, पता चलिए ना क्या लिखोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग दी है, उसके अंदर आपको मीडियन समझाया और आज की क्लास मोड है, अगर आप उसमें से लाइव स्ट्रीमिंग देख के आप मीडियन समझ लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास मीडियन की डाल दूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मोड निकालने के लिए हमें स्टेप की 2 स्टेप की रिक्वायर होती है। फर्स्ट मॉडल क्लास, अगर मॉडल क्लास नहीं निकलेगा तो आप मोड नहीं निकाल पाओगे। फर्स्ट मॉडल क्लास एंड मोड, और मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अब मॉडल क्लास कैसे निकलेगा, क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मॉडल क्लास। क्लास मार्क ऐसा क्लास मार्क जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलते हैं मॉडल क्लास। वो क्लास मार्क जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या बोलते हैं मॉडल क्लास। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 9 की, तो दिस इज एन मॉडल क्लास 20 से 30। तो 20 से 30 के बीच में ये क्या हो गया हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब ये क्या हो गई F0 और ये क्या हो गया F2। ओके, ये हो गया मॉडल क्लास। आपने फॉर्मूला देखा था उसमें तो L था, L मतलब लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज 2, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट इज 2। यहाँ पे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं मोड निकालने के लिए L प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H, एम राइट। ठीक है, अब देखो इसमें L क्या आ गया 20 प्लस F1 क्या आ गया 9 माइनस F4 कितना आ गया 2F5 मतलब 2 9 18 माइनस 2 माइनस 6 इंटू H कितना है 10 का डिफरेंस है। ओके, पहले इसको 20 प्लस 9 माइनस 2 7, अब फर्स्ट ऑफ ऑल 18 माइनस 2 ऐसे करोगे, माइनस माइनस प्लस है तो 6 माइनस 2 मतलब माइनस का 8 हो जाएगा, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा इंटू 10। अब 18 माइनस 8 क्या आ जाएगा 7 अपॉन 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 20 प्लस 7, और 20 प्लस 7 इज 27। तो आपका मोड कितना आ गया 27, योर मोड इज व्हाट 27 आपका मोड आ गया। तो आपने क्या कहते हैं मोड फाइंड आउट कर लिया। यस, अब एक चीज देखो, आपका जो मोड आया वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वो आपके मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपका जो मीडियन और आपका जो मोड होता है, मीडियन भी बता रखा है मैंने और मोड भी बता रखा है। मीडियन और मोड जो हमेशा आपका आता है वो हमेशा उसके क्लासमेट जैसा, मोड में मॉडल क्लास के बीच में लाई करता है और मीडियन में मीडियन क्लास के बीच में हमेशा लाई करेगा। जैसे मैंने अभी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में एक एग्जांपल दिया था, उसमें 20 से 30 के बीच में उसका भी क्या आ रहा था मीडियन क्लास आ रहा था और उसका मीडियन आया था 22.5। तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है। वैसे ये 20 से 30 के बीच में क्या इसका आया मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है मीडियन, हाँ 27। तो डेट्स वाई जो आपका मीडियन या मोड होता है हमेशा मॉडल क्लास मीडियन क्लास के बीच में लाई करता है। दिस इज एन एग्जांपल। ओके, अब जैसे मैं इसमें फिर से आप अब तो ये वाले कर लो, वैसे मैं जल्दी से रिजल्ट चेंज करके दूं 6 7 5 4 2। अब इसके अंदर से सबसे पहले देखो मॉडल क्लास निकालोगे, मॉडल क्लास कैसे निकलते हैं, क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज दिस, तो F5 आगे क्या क्लास मार्क ऐसे लिख देना पहले, क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
नोन एज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आ गया। मॉडल क्लास इसमें क्या आया 10 से 20, 10 से 20। अब आपने देखा था उसमें L प्लस था तो मतलब लोअर लिमिट इज 10। अब इसका देखना F0 इज व्हाट 6, F2 इज व्हाट 5। तो कैलकुलेट कर देंगे हम। कैलकुलेट कर रहे हैं क्या है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। ओके, F1 क्या है 7, 7 माइनस F4 क्या है 6, F2 F1 2F1 है ना, तो 7 टू द 14 माइनस 6 माइनस 5। L कितना है 10 प्लस ओके, और H कितना है हमारा 10 है। 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 6 माइनस 5 इज 11 माइनस का, तो 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 10 प्लस इंटू 10। तो 14 माइनस 11 1/3 इंटू 10 प्लस 10। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3.33 समथिंग आएगा, और डेट्स वाई द कैलकुलेटर इज 13.33। अब इसका देखो, आपका मॉडल क्लास आया था क्या 0 से 10 से 20 के बीच में, और इसका मोड कितना आया 13 से 13.33। तो हमेशा ये किसके बीच में आता है, मॉडल क्लास के बीच में आता है। ये तो आपके इजी वाले हैं। अगर आपको जैसे इस तरह से इक्वेशन आ रही तो आप क्लास, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी।